Good evening to each and everyone. I welcome my stranger friend throughout the world, serving in any of the post and position I don't know. He's not here. Besides that, the friends on Facebook, on you can say it about that my page and this and that like that. It is my usual practice to make some sort of group discussion here also. Maybe it will be the last or first, I can't say, because exam is knocking at the door. Certainly they will be busy doing the examination. And almost all the persons are old, but some new faces there. And topic today will be there. It is thought to be women empowerment, or you can say it about that Mahila Sasakti Hmm? Now my question here is that why is it so that women should be given this power after such a longer period, maybe of 75 years or maybe this and that? Arushi, what about your opinion? Is it justified? Sir, since the colonial time, Mhm. women are not given the equal rights as men. Like there were many practices like sati, which had brutal consequences Yeah. to women. But if we talk about the current times, the conditions have really improved. Yeah. But still, in some cases, women are not given the same rights as men. It could be said that some people say that physically and mentally women are not strong enough as men, but that is not the case. Many statistics have proven that women can also Yeah. be the same as men. So our constitution is definitely giving the same rights to Yeah. women as well, but our society doesn't want to give them the same rights. So if our society and people don't change their thinking, then all the rights are useless. Now the question here is that, don't you think it about that their point of view is this? Man is hard built, solid built, women is delicate built. Huh? Or maybe because of that reason they are likely to be put inside home. Do the household work like that? A man should go outside and do the work, and after that the person who brings the money, that person should be given some sort of weightage, and we can say to that maybe some sort of respect like that. This is how our tradition of the society continues to be so. You know, sir. Am I correct? Huh? Then the question here is that, gone are the days. अब मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा हिंदी में भी आ जा रहा हूँ, है ना? वह समय चला गया कि औरतें चार दीवारी में बंद रहती थी, है ना? और घुटी रहती थी। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उसको फेंक दिया खाने को, या ये नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ। सास का ताना सुनना, उसके बाद ननद का ताना सुनना, उसके हस्बैंड का, उसके मतलब पूरे रिश्तेदारों का। आज वह समय नहीं रह गया, कोई किसी का नहीं। दूसरी बात, भाई मेरे पहले हाउस वाइफ हुआ करता था, अभी हाउस हस्बैंड भी होने लगे, है ना? What about your concept about house husband? हाँ नहीं, उसके विषय में क्या जानती हो? अब तो मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनो। हाउस हस्बैंड वह कहलाता है जो काम नहीं करता, उसकी पत्नी काम करती है ना? ये पत्नी काम करती है, ऑफिस जाती है, पैसे कमा के लाती है, तो इसको तो घर में खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा, खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चे का भी देखभाल करना पड़ेगा। जो मर्द ऐसा करता है उसको हाउस हस्बैंड बोलते हैं, है ना? The situation underwent a change, is not here. This shows it about that the person who does the thing, certainly it is right. And so far as I think physical construction is concerned, everything is same. And mental situation, you look at the CBSE result, girls are far ahead in comparison to boys. In what field do you think girls are lagging behind? If this is not so, still one kind of bad practice is there. Just you take the example of my daughter. My daughter is MBA, BSc biotechnology. She is, you can say, independent. Even after that, dowry was just demanded 25 lakh rupee, one four-wheeler. Is it justified? When a girl is earning, she doesn't require even a single farthing, even then for the sake of marriage to live with a husband, 25 lakh rupees to be given. Is it not rotten system of society? So when women is given empowerment, certainly this dowry system is to be eliminated. But as it is really supposed to be entered in our vein, in our just blood, it is very difficult to make it to be removed. It not sir, because here comes the thing that is known as greed. अब यहाँ पे सवाल उठता है, कल को तुम भी पढ़ी लिखी लगती है, पिताजी ने आपने पढ़ाने उड़ाने में सारे पैसे खर्च कर दिए, जब तुम्हारी शादी की बात होती है तुमसे दहेज मांगा जाता है, तुमसे मतलब तुम्हारे पिताजी से, पिताजी क्या करेंगे? या तो घर बिक्री करेंगे या अपना किडनी बिक्री करेंगे,
अरे पैसा नहीं हो तो किडनी बिक्री करेंगे ना जी, है ना। तो क्या तुमको लगता है शादी की पापा का किडनी जाने दो, घर जाने दो, है ना, उनको शादी करो। तुम्हारा क्या इसमें जवाब क्या दोगी तुम, कैसे क्या करोगे बताओ, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं। फिर मैं इस लायक या फिर मेरी जॉब ऐसी हो जाए कि पापा को दहेज ना देना पड़े, मैं दे सकूं। तो तुम्हें तुम्हारे में एक मिनट तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं लगता, तुम बोला ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं सर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ भी करूँगी, है ना। अरे नौकरी नहीं मिलेगा, मैं नौकर तो बना सकता हूँ लोगों को ना। और नहीं तो जैसे हमने अपने बताया ना कि अगर तुम बेचना आ जाएगा तो तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना। बेचने का मतलब जो भी तुम्हारे पास है, अगर मुस्कान है तो मुस्कान है, डांस है तो डांस है, जो भी बेच सकती हो, है ना। और उसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो किसी आदमी जैसे माल का ऑर्डर सप्लायर तो बन ही सकती हो ना। एक तो ऑफिस बना लिया, ऑर्डर सप्लायर, आदमी आएगा पास में, जो सामान आएगा पर्टिकुलर दुकान में जाओगी, वहां से आकर के सामान लिया, ला कर उस आदमी को दे दिया, है ना। तो अगर मुझे ये आ जाएगा तो जिंदगी जीने का मतलब थोड़ी होता है कि हम बच्चे बढ़ाएं, परिवार बनाए। अरे जिंदगी जीना है जैसे लोग जीते हैं। अब जैसे एक सीधा एक ये तो सवाल तुमने बता दिया कि हम दहेज नहीं देंगे, शादी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैं रील में देखता हूँ कोई लड़की बोलती है हमारा उम्र 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, शादी नहीं हुई है, कोई शादी करना चाहते हो तो कर लो, है ना। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई भी चलेगा, किसी भी जात का चलेगा, बूढ़ा चलेगा, जवान चलेगा, बच्चा चलेगा, है ना। तो ये भी कहने का मतलब कहीं ना कहीं सोचता हूँ लकुना है ये, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लड़की वो जो तो लड़की भी इससे शर्म वाली होती है, लेकिन वो मजबूर होकर के यहाँ पे आई है ना। कोई एक बच्चे की माँ है, किसी को डिवोर्स हो गया, किसी को कुछ, अपना भी बात रखता है। तो आज हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। तो 21st सेंचुरी में अगर हम फैमिली तक रिलेटेड रहते हैं तो कोई ये बहुत ज्यादा ये नहीं करते, है ना। एक मिनट, अब जैसे तुमको हमने बताया था कि हिंदुस्तान में औरतों को इक्वलिटी का अधिकार तब मिल गया था जब देश आजाद हुआ। उसका रीजन था कि इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के आजादी की लड़ाई में जंग लड़ी थी, चाहे वो सरोजनी नायडू हो या फिर विकाजी कामा हो या दूसरे लोग हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में औरतों को इक्वलिटी का ये तुम्हारा अधिकार लेने के लिए सफरा गोटे नामक एक तुम्हारा आंदोलन इसको करना पड़ा, तब जाकर के वहां ये मिला है ना। अब यहाँ पे थोड़ी दूर मैं और पीछे में चलता हूँ, है ना। तुम्हें नहीं लगता है कि औरत के सशक्तिकरण में औरत ही उसका दुश्मन है? कहीं एक मिनट, कहीं बहू अगर जलती है, किसी बहू को मारा जाता है, कहीं ना कहीं उसका सास भी रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं उसका ननद भी रिस्पॉन्सिबल है। औरत ही औरत को नहीं मार रही है, मार रही है ना। अच्छा, दूसरी एक कहावत है, आज भी औरतों के साथ कहा जाता है लड़कियां, हेलो सुनो अच्छा, लड़कियां पराई धन होती है। ये तुमको नहीं लगता कि जब तुम्हारे साथ धन जोड़ा जाता है तो तुम्हें एक तरह से इंसल्ट किया जाता है? लड़कों के साथ तो नहीं कहा जाता है कि वो अपना धन है, बोलता है क्या? फिर भी काम कराते हैं घर में। हाँ, लड़कों बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। तो इस पराये धन का क्या कंसेप्ट है तुम्हारा? हाँ, पराये धन के बारे में क्या सोचते हो? अरे मेरे पे कोई बात नहीं, चलो भेदभाव ना हो। और क्या, बर्तन झाड़ू मैं करती हूँ, आराम से बैठ रहो, फोन चलाते हैं, तो गलत बात है ना। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, जैसे लड़कियां शादी करती है ना, तो उनको ढेर सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। माथे में सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनो, है ना, पायल पहनो, ये पहनो, वो पहनो। लड़के की शादी जब होती है तो कहाँ देखते हैं ऐसा कुछ उसके माथे पर लगाया जाता है कि ये शादीशुदा है? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये रहना चाहिए? क्या ये रहना चाहिए? श्रृंगार होता है, ठीक। अच्छा, एक मिनट, एक सुनो हमारी, ठीक है, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो चाइना में लड़की खूबसूरत वही मानी जाती है जिसका पैर छोटा होता है। पैर छोटा नहीं, पैर के सुनो हमारी बात तो सुनो ना पहले। जिसका पैर छोटा होता है, तो पैर छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको लोहे का जूता पहनाया जाता है ताकि उसका पैर आगे बढ़े ही नहीं, है ना। तो एक तरह से तुम्हें नहीं लगता है हरासमेंट है? आज भी जैसे भेदभाव करते हैं। अरे सुंदर बंदर क्या है? सुंदर बंदर क्या होता है जी? आदमी का सोच होता है ना जी। हेलो सुनो, आदमी का सोच होता है न कि नहीं किसी के पैर को एकदम इतना लोहे का जूता बना के छोटा बना दो। या साउथ अफ्रीकन कंट्री में जाओगे तो वैसी औरतें इसका होठ लटकता रहता है, वो सुंदर कहलाती है ना। वो क्या करता है, यहाँ काट देता, काट यहाँ लोहा फिट करता है, फिर वो लोहा लटकता है, वो जो होठ लटकता है सुंदर होता है। तो अब हो सकता है कि यह सिस्टम खत्म हो गया होगा, है ना। लेकिन कहीं न कहीं जैसे कि अब यहाँ पे एक सवाल ये पूछते हैं, किससे था? हाँ, ये बाल विवाह क्यों शुरू हुआ? मुझे बताओ तो, इसके पीछे क्या रीजन था? तुम लोग तो हिस्ट्री पढ़ते हो। लड़कियों की शादी अंडर एज में ही कर दी जाती थी, क्यों? क्या रीजन था? राजस्थान वालों को पता होगा। नहीं, वो तो जब तुम हिस्ट्री पढ़ती हो तुम्हें ही पता होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो।
अंडर एज में शादी होने का रीजन था कि हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे मान लो जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, जो भी आया, संपत्ति तो लूटा, जो अच्छी लड़कियां थी सुंदर तो उनको भी उठा करके लेके जाते थे। अब लेकिन उनके साथ ये था कि वो अनमैरिड चाहिए, उनको वर्जिन चाहिए, है ना। तो इसके वजह से लोग सोचते थे कि अगर हमारी बेटी बच्चे की शादी हम छोटे में कर देते हैं तो शायद वो नहीं होगा, है ना। और उस जमाने में ऐसा थोड़े था कि शादी करेंगे वो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये करें वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। एक तो यही रीजन है। तुमने देखा होगा सुंदर सुंदर चेहरे पर भी जैसे मान के चलो तुमने टैटू किया, शरीर में किया, इधर किया उधर किया, लेकिन चेहरे पे जो तुम टैटू बनाती हो पीछे क्या रीजन? सर सुंदरता बिगाड़ना, सुंदरता बिगाड़ते हैं, जैसे कि दूसरे जो लोग होते हैं जो हाँ, बाहर से आते हैं हाँ। तो उस लड़की को पसंद ना करे, जिसको उसको उठा के ना ले जाए। हाँ हाँ हाँ, चलो यहाँ पे बिल्कुल सही जा रही हो, है ना? जा रहा है चलो, सर, जा रहा है। चलेगा। सर एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहती हूँ। सर ये जो दुपट्टा जो रखती है ना लड़की औरतें, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रखते हैं, पर ना इसको रखने का रीज़न ये नहीं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें, ये ना जब मुस्लिम लोग जब हमारे इस पे रह रहे थे इंडिया में, हाँ इंडिया में रह रहे थे और जो राज कर रहे थे उस टाइम पे क्या था, वो लोग ना जो भी लड़कियां होती थी ठीक होती थी या फिर औरतें होती जो अच्छी लगती थी देखने में, उनको वो उठा के ले जाते थे। अच्छा। तो उनसे ही बचने के लिए दुपट्टा रखा जाता है, ना कि दुपट्टा उनको ऐसे प्रथा वगैरह है या फिर इंडियन हाँ, हिंदी के अंदर ये नहीं, हमारी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो टोक रहा हूँ। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे कि मुस्लिम लोग जो उनके जो पानी पीने का सिस्टम है तो जैसे चाय के केटली जैसा सा है ना, तो तुम अगर बीकानेर में जाओगी तो वहाँ मुस्लिम नहीं हिंदू लोग भी ऐसा करते हैं। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, पानी का कमी है, ज़्यादा पानी पी नहीं सकते, गला तराने के लिए थोड़ा उसको कर लिए। अब यहाँ पे एक एड पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ, खास करके जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे तो हमारे कह सकते तूफान जैसा या बालू उड़ना ज़्यादा होता है, तो सर ढकने के लिए या फिर उसमें नाक में कान में नहीं जाए तो वो बांधने का चलन बना, एक वो भी रीजन होता है, नेचुरल रीजन हो सकता है। दूसरा जो तुम कह रही हो वो भी हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि शक्ल दिखेगा, सुंदरता दिखेगी तभी ना लोग उठा के ले जाएंगे, है ना, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर घर में दोनों ही कमाने वाले हैं तो फिर भी जो मेल मेंबर होता है उसको लगता है कि नहीं हमारी पत्नी घर बाहर भी काम करके आए और यहाँ घर में भी काम करे, क्या ये सही है क्या? क्या होना चाहिए? खाली घर का काम करना। एक कोई एक बोलो उसके बाद दूसरा बोल सकता। दोनों अगर दोनों बाहर जाते हैं तो दोनों मिलके घर का काम भी करें, बाहर भी करें, दोनों मिलके घर का भी काम करें। बाहर किया है। अच्छा एक बात और है, खाना का काम बनाने के लिए औरतों को दे दिया जाता है ना, लेकिन तुम किसी भी 5 स्टार होटल में जाओ जो बढ़िया खाना बनाने वाला मेल होता है, फीमेल नहीं होता है ना। हाँ, जब मेल फीमेल का काम कर सकता है और फीमेल मेल का काम कर सकता है तो भेदभाव किस बात का, है ना। वैसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आज लड़कियाँ नहीं है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या साइंटिस्ट वाली बात हो या किसी ऑफिस में जाओ लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिखती है, तो फिर इस तरह का भेदभाव क्या सही है क्या? अच्छा एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, हमने महिला सशक्तिकरण की बात की है, हमने 35% रिजर्वेशन दिए औरतों को, तो 35% क्यों, 50% क्यों नहीं? जब 50% हमारा पॉपुलेशन 50% है, 50% क्यों नहीं दे रहे? इसके विषय में क्या बोलना चाहोगी कुछ? सर एक रीजन ये हो सकता है कि इसको हटाओ थोड़ा सा मास्क को, है ना, कि वुमेन्स के अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटी है जैसे SC ST, उन्हें भी रिजर्वेशन मिला है। यहाँ SC ST की बात नहीं है, SC ST में भी मेल है फीमेल है, जनरल में भी मेल है फीमेल है, मैं तो 50% की बात कर रहा हूँ, 50% मेल 50% फीमेल। यहाँ SC ST और उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। कुछ उन्हें भी मिला हुआ है ना, इसलिए तो जितना नहीं तो I simply want to say it about that when you talk about merit, remove this reservation, you wanted to make the class system to be abolished, है ना। आप चाहते हो कि जातिवाद खत्म हो जाए, लेकिन तुम जातिवाद को बचा के भी रखना चाहते हो, है ना। जैसे लोगों से क्यों पूछते हैं, ना पूछा ठीक है, अरे भाई तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा जात क्या है, हाँ सरनेम पूछ लेते हैं, तो सरनेम से काम पता चलता है, सिंह तो डुप्लीकेट होता है, वो तो कोई भी लिख लेता है ना। जहाँ लिखने में दिक्कत है कि पंडित होना मुश्किल होगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल ही उठता है कि अगर हम क्लास अभी जैसे मान के पूरी दुनिया को हम एक परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन घर में ही नहीं हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे
भाई भाई से नहीं पटता, बहन बहन से नहीं पटता, उसके बाद माँ पिताई से नहीं पटता, "अरे तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, रोज मने अरे देख लेंगे तो देख लेंगे कहीं। और आए दिन तुम टीवी में देखती हो मारामारी होता है ना, कहीं बच्चे बेटे ने बाप को मार दिया। तो जब पूरी दुनिया की बात हम करते परिवारवाद की, तो एक अपना परिवार भी नहीं संभलता जिसमें 4 आदमी है, 2 आदमी है। ये जो कंसेप्ट है मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कहाँ तक सही है? परिवार का कंसेप्ट मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, क्या तुम इसको रखना चाहोगे या वह परिवार रखना चाहोगे जहाँ बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और वो सारे रिश्तेदारी को जानते हैं? आज तो बच्चे भूल गए हैं मामा किसको बोलते हैं, मालूम ही नहीं है ना, चाचा किसको बोलते हैं मालूम ही नहीं है, वो बुआ किसको बोलते हैं मालूम ही नहीं है ना, उनको बताना पड़ता है। तो हम या डेवलप हो रहे हैं ना कि डाउनफॉल हमारा हो रहा है? डाउनफॉल कैसे? क्योंकि सर अब लोग ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उन्हें न्यूक्लियर फैमिली रखनी है, हालांकि जॉइंट फैमिली के अपने मेरिट्स हैं, पर लोग रखना ही नहीं चाहते हैं, वो उनसे अलग हट के रहना चाहते हैं कि उन्हें आइसोलेशन मिले एंड वो अलग रहे। सो जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेटर है ताकि बच्चों को एटलीस्ट पता तो हो कि कौन कौन है एंड उन लोगों का सोशल इंटरेक्शन होने से पहले फैमिली इंटरेक्शन में बढ़े। एक बर्निंग एग्जाम्पल है, सुनो एक मिनट सुन लो हमारी बात। एक महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि मुझे परमिशन दो सुसाइड करने का। जानती हो क्यों? वो जज होता है लेकिन उसके जजमेंट को लोग नहीं मान रहे हैं, उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया गया, मोलेस्टेशन किया गया, जैसा हमने न्यूज में सुना था, है ना। औरतें बड़े बड़े पोस्ट पे चली जाती हैं लेकिन फिर भी जो मेल मेंबर है उसको रिगार्ड नहीं करता है ना, नहीं रिगार्ड करता है। इसका मतलब वो जो पुरानी सोच है, जो दक्यानिशी सोच है या कह सकते समानती सोच है, वो आज भी हम कैरी कर रहे हैं। क्या है? कुछ भी तो औरत ही है ना, क्या बकवास कर रही है, यही बोलता है ना जी, है ना। तुमने फिल्मों में भी देखा होगा, आम लाइफ में भी देखते हो, आए दिन देखती है ना। तो इनसे निपटने के लिए क्या है कि हर लेडी को अपना एक तो एजुकेशन तो होना ही चाहिए। तो एजुकेशन अभी है, अभी ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन नहीं है। मैं इससे कभी बात करता हूँ, लड़कियों से भी बात करता हूँ, जो मैं अभी उस दिन 2 दिन पहले किसी लेडी से मैंने इंटरव्यू लिया है, होम मेकर है लेकिन सी डिड नॉट एक्चुअली स्पीक हिंदी, और इंग्लिश ही बोल रही है। फिर बाद में उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए उसको बोला हिंदी बोलने के लिए। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हम मर्द और औरत या मेल और फीमेल के में लड़ाई लड़ते हैं तो क्या होगा? तो परिवार खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लो, हमारी मिसेस कभी कभी शिकायत करती है आपकी वजह से हमने नौकरी नहीं की। सी इज डबल एम ए साइकोलॉजी, एम ए हिंदी। हमने कहा नौकरी अगर की होती तो शायद बच्चे नहीं पढ़ते, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा सुविधा होगा, बच्चा नहीं पढ़ता है। हमने हमारा एग्जाम्पल है, क्राइसिस होता है तो लगता है कि भाई हमको कुछ करना है लाइफ में, है ना। तो कभी कभी तुम्हें आर्टिफिशियल क्राइसिस भी पैदा करना होगा ताकि बच्चे को लगे कि पैसा का वैल्यू क्या होता है ना। और पैसा आसानी सब, किसी को 10 रुपये दो, रोज नहीं दो, उससे बढ़िया उसको 10 रुपये कमाना सिखा दो, है ना। अगर वो 10 रुपये कमाना सीख लेगा तो चाहे वो लड़की हो या लड़का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज के ज़माने में तो मैं देख रहा हूँ पेट्रोल टैंक जो है वहाँ भी लड़कियाँ काम कर रही है, ये बस चला ही रही है, ट्रेन चला ही रही है, प्लेन रिक्शा चला रही है, और उधर फाइटर जेट चला ही रही है ना। और फिर देश का जो प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सब कुछ तो है ही है। तो फिर इस भेदभाव का क्या जरूरत है? दूसरी बात, एक सोच ये भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बना ठीक है, उसने कहा था कि आप तब तक रिजर्वेशन दो जब तक लोग डेवलप नहीं हो जाता है। अब मान के चलो SC ST है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ या पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, उसके परिवार में सारे बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, फिर भी उसको रिजर्वेशन चाहिए क्या? नहीं। उस ST ST को दो ना जिसके पास अभी रोटी नहीं मिल रहा है, जिसके गंजी फटे हुए हैं, जिसके गंजी में छेद है, उसको तो आप नहीं दे रहे हो, दे उसी को दो जिसको पहले से पेट भरा हुआ है। तो यहाँ अब जैसे मान लो तुम में से 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियाँ यहाँ पे और 2-3 लड़के हैं, तुम्हारी मेजोरिटी यहाँ पे है ना। अब तुमसे फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती हो? जहाँ पे सब इक्वल हो, इक्वल हो है क्या? सब इक्वल हो, कह सकते हैं है भी नहीं भी, क्योंकि लोग हर तरीके के लोग, एक ही इंसान को ना आप 2 तरीके से देख सकते हो। अभी एक ही इंसान ये बोलेगा कि हाँ हम भेदभाव नहीं करते, और वही ये भी बोल देगा कि लड़कियां तू कैसे बाहर जा रही है, तेरे को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बोल देते हैं लोग, एक ही इंसान ये चीज बोलता है कि नहीं जाना चाहिए। एक इंसान अगर अपने घर के बच्चे को बोल रहा है कि तेरे को बाहर नहीं जाना चाहिए, पर लेकिन बाहर वो ज्ञान दे रहा है कि नहीं, किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, सब समान है, सबको एक जैसा रखना चाहिए। जिस दिन बाप अपने बेटे को संस्कार देना शुरू कर देगा, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई रेप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लड़कियों को भी अपना इस पर ध्यान देना होगा। जब हम फ्री समाज में रहेंगे तो यहाँ घूमना वहाँ घूमना कोई दिक्कत नहीं है।
घूमने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब घूम रहे हो तो क्या कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बना लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, लिव इन रिलेशनशिप बना लिया। तो ये क्या लॉजिक है? जैसे मैं अपने बच्चों के बारे में बोलता हूँ, पढ़ने के लिए भेजा, आपने अपना सिलेक्शन खुद कर लिया, हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी, हाँ पैसे तो खर्च हुए, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है कि माँ बाप का भी तो कुछ ना कुछ हक बनता है जी, है ना। अब जैसे परसों हमने एक न्यूज़ में सुना था, एक आदमी न्यूज़पेपर वाले को जो उसका बॉक्स होता है उसको हटा करके उसको बोला कि जब न्यूज़पेपर हमको देते हो तो फ़ोन करके हमको बोलो। तो बोला क्यों, इसमें टाइम किल होता है? बोला और कुछ नहीं, हमको बोलो उसके लिए 500 रुपया देंगे। बोला क्यों? बोला देखो कुछ दिन पहले हमारी बूढ़ी मर गई, पत्नी मर गई, है ना, अभी मैं अकेला हूँ, तुम्हारा कम से कम तुम कॉल बिल बजाओगे तो लगेगा ना कि हम जिंदा है। जिस दिन अगर कॉल बिल बजना मतलब जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब मर गए, ठीक ना। और बच्चों को पढ़ा गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तब यहाँ पे हम बच्चों को ही दोष नहीं देंगे, माँ बाप को भी दोष देंगे। माँ बाप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है, हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमको ये करना है वो करना है, पैसा तो भेज रहा है ना, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, बात करने की फुर्सत नहीं है। तो ये जो पैसे के चक्कर में हम सारे के सारे एडम स्मिथ बन गए हैं। एडम स्मिथ समझ रहे हैं ना, एडम स्मिथ बन गए। कोई मार्शल बनना नहीं चाहता, है ना, और कोई रॉबिन्स भी बनना नहीं चाहता, कोई जेके मेहता भी बनना नहीं चाहता, कोई सुदामा नहीं बनना चाहता, सबके सब कृष्ण बनना चाहता है। ये तो कभी भी संभव नहीं है ना। हाँ, कृष्ण अगर कोशिश करो, कृष्ण नहीं बना तो कम से कम उसके करीब तो पहुंच जाओगे। अगर सिविल सर्विसेज के लिए बैठना चाहते हो वो अगर नहीं कर पाया तो कम से कम प्रोविंशियल तो कर ही लोगी, है ना। अगर वो ये IAS नहीं बना, DM नहीं बना तो कम से कम BDO तो बन सकता है, CO बन सकता है। अब यहाँ हमने इन बच्चों से ये, अच्छा एक बात, मैं महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है केवल आपको सशक्तिकरण देने से नहीं होगा, आपको अपने में भी बोल्ड होना पड़ेगा, है ना। आपको बोलना भी आना चाहिए, थोड़ा सा देह में ताकत भी होना चाहिए, ब्लैक बेल्ट भी होना चाहिए। चलो कोई आया तो है, देख लग, है ना। और कुछ नहीं तो सबसे बढ़िया तुम लोगों का नक तो बड़ा बड़ा हो ही होता है ना। और लायन की तरह उसका यूज करो ना किसी का, ना कम से कम जिसका ये छिलेगा आँख में लगेगा तो कोई बदमाशी नहीं करेगा। खैर मैं उम्मीद करता हूँ मैं रहूँ या नहीं रहूँ, बहुत ज़्यादा 10 साल ऊपर से जरूर देखेंगे आरुषि क्या कर रही है ना, ये क्या कर रही है। फिर हो सकता है कभी टोक भी देंगे, है ना, टोक भी देंगे, हेलो तुमने प्रॉमिस किया था ये करेंगे, जैसे बोले सरकारी नौकरी का मतलब सरकार बनो ना जी, सरकार बनो। और एक बात मैं फिर यहाँ पे इसी मीटिंग में कहना चाह रहा हूँ, जब फेलियर IAS को बना सकता है तो वैसा अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड उस सरकार में जाके नेता भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। और एक सवाल ये भी उठता है, एक प्योर के लिए कम से कम क्लास 8 पास है, तो जिसके देश में, जिसके हाथ में हम पूरे देश का बागडोर सामान रखते हैं, क्या उसका कितना पढ़ाई होना चाहिए? क्लास 8 9 पास नहीं ना, उसका भी कोई एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन ही नहीं, उसका भी एज फैक्टर होनी चाहिए। और उतना ही नहीं, जब सबका पेंशन खत्म किए तो उसका भी पेंशन खत्म होना चाहिए, है ना। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। हम टैक्स देते हैं तभी सरकार बनती है, सरकार कौन? हमसे है ना। तो भाई मेरे, तुम युवा हो, उन्हीं को चुनो जिसमें मेरिट हो, किसी भी पार्टी का उससे कोई फर्क नहीं, जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, तुम्हें से कल को अगर सबको नौकरी मिल गई, वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो इस एरिया में जरूर हो, है ना, आकर के कुछ करो, है ना। जब मैं पूछता हूँ कभी किसी डॉक्टर से कि भाई अब तो इतना पढ़ाई किया, डॉक्टरी कर क्यों इसमें आ गया IAS में, किसी IIT जानते हो क्यों वो बोलता है? एक BA पास, सिंपल BA पास आके सबके सामने एकदम ऊपर हो जाता है ना। तो हम क्यों नहीं ऊपर हो सकते? तो ऊपर हो गए, ठीक है, IAS बन गए, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत जानते क्या हो गई? कि तुम्हारा जो पढ़ा लिखा एक्सपर्टाइज, जो करोड़ों रुपया तुम्हारे पीछे खर्चा हुआ, वो तो बेकार चला गया, है ना। लेकिन उस दिन एक शर्म की बात है, एक किसी स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर वो देख के नहीं पढ़ पा रहा है, ही इज क्लास 12 एंड ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर, हाउ विल ही रन द मिनिस्ट्री, आई मीन टू से। वो 1 लाख को 10,000 बार बार पढ़ रहा था, बाद में किसी ने टोका इट इज 1 लाख। देख के जब आप नहीं पढ़वा रहे हो तो कैसे चलाओगे हमारा स्टेट, कैसे चलाओगे हमारा देश, है ना। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ग्रुप डिस्कशन को विराम देता हूँ, और जाने के पहले एक आध बार और भी किसी टॉपिक पे किया जा सकता है। और उस दिन कोशिश करो इंग्लिश से बोलने के लिए, हिंदी नहीं, है ना। इसे तुम सीखोगे जी, हमारा तो बनना बिगड़ना तो हो गया, आप तो कुछ नहीं होना है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। कितना मिनट का हो गया जी?